Hello dear children, this is Preeti Chhabra and I welcome you all to Learning Never Stops. Today we are going to start with a new chapter, Study of Gas Laws. Laws means some set of rules. Okay, now gas, as we all know, the particles of gas, they are free to move in the entire available space, right? They have got the freedom to move in the entire available space. तो जिसके पास इतनी सारी freedom हो, क्या वो भी laws follow करते हैं? ऑफ कोर्स फॉलो करते हैं. तो आज हम वही पढ़ेंगे कि गैस क्या लॉज फॉलो करते हैं. व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ गैस. ओके, नाउ टू स्टार्ट विद स्टेट ऑफ मैटर. सबको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड के पार्टिकल्स किस तरह से रहते हैं? लाइक दिस, राइट, वेरी क्लोज टू ईच अदर. वी ऑल नो दिस. लिक्विड के लिटिल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज there in the particles of liquid, but gas, this is the condition of the particles of gas, right? The interparticle space. Interparticles means दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है ये बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा स्पेस है. इतना ज़्यादा स्पेस होने की वजह से the attraction between the particles of the gas is very weak in case of gases. Okay, so the interparticle space is very large and the interparticle attraction is very weak. Now when we are talking about the gases, so gases irrespective of कि उनका कलर क्या है, उनका odor क्या है, उनका chemical nature क्या है, irrespective of that, सारी gases they show uniform behavior. They show uniform behavior. कब यूनिफॉर्म बिहेवियर शो करते हैं गैस पार्टिकल्स या द गैस एज अ होल? व्हेन द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, दीज टू कंडीशंस, टेम्परेचर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर कंडीशंस सिमिलर हो तो अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर सारी गैसेस एक यूनिफॉर्म बिहेवियर शो करती हैं. ठीक है, तो वो क्या बिहेवियर हैं, वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, फाइन, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? लेट अस लुक एट दोज वन बाय वन. नाउ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस, द कॉम्पोजिशन ऑफ गैस. व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस? गैसेस आर मेड अप ऑफ every matter is made up of particles. So these gases are made up of very tiny particles. ये at every possible speed वो move करते हैं. They are in random motion all the time and they hit every possible direction. अगर वो गैस पार्टिकल्स कहीं भी प्रेजेंट हो, they hit, they collide with each other also and they hit the walls of the container also. That means जितनी भी space available है they keep on moving, fine, and they hit in all possible directions. They move in all possible directions with the maximum speed that is possible. So what happens जब ये move करते हैं इस तरह तो the entire available space को occupy करते हैं. That is why इनकी खुद की कोई शेप नहीं होती. They don't have their, the gases, they do not have their any own shape. They take the shape of the vessel in which they are kept. Fine. So this is the second characteristic property. First is composition of gases. We have seen it made up of tiny particles and they move randomly in all possible directions, and due to that they take the shape of the container. Okay, so this is the second property. What is the second property? That they don't have any fixed shape, no fixed shape. Okay, they take the shape of the container. Okay, the third property can also be seen here only. यहाँ पे हमने देखा they hit the walls also and they collide with each other also, right? किसी भी चीज़ पे बार बार हिट करने से प्रेशर क्रिएट होता है उस वॉल पे, उस चीज़ पे. ठीक है, तो जो वॉल ऑफ कंटेनर है ना, इसमें एनी टाइम एक प्रेशर क्रिएट होता है. वाई प्रेशर? बिकॉज दीज आर कॉन्स्टेंटली हिटिंग द वॉल. तो इस वॉल में कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर क्रिएट होता है. दिस इज द थर्ड बिहेवियर प्रॉपर्टी. ओके, दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी इज गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल. सेकेंड और थर्ड इज दे एक्सर्ट प्रेशर. वी हैव जस्ट नाउ सीन they exert pressure, okay, in the walls. And then the fourth one is they are highly compressible. compress किसे कर सकते हैं? किसी हार्ड सॉलिड सब्सटेंस को कभी कंप्रेस कर सकते हैं? नो. जिसमें स्पेस हो, जिस पार्टिकल, इन पार्टिकल्स में बहुत सी स्पेस है, इस स्पेस के होने की वजह से इट कैन बी कंप्रेस्ड. ओके, so this is the fourth property, it is highly compressible.
Now the fifth property is just opposite of this. It is highly expansible. Expansible means जिसको easily expand किया जा सके. तो ये तो already expanded है, क्या और ज़्यादा expand कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं. How? Two factors. As we just now saw कि behavior of the gases वो uniform होता है, but there are two conditions. The conditions are the pressure. The whole chapter अब जब आगे पढ़ेंगे तो we'll see कि how important these two factors are. Okay, temperature and the pressure, the conditions, these two conditions, they play a very important role while studying the gas laws. We'll find तो pressure and temperature ये दो conditions अगर vary की जाएं, then we'll find कि gases are highly expansible. इसको expand किया जा सकता है. expand करना means इसके volume को increase करना, right? volume किस तरह से increase होगा? Now we'll concentrate on these two factors. First we'll see into the factor this one, pressure. किसी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा pressure create करो किसी चीज़ पे, suppose आप गैस में इसको आप बहुत ज़्यादा compress कर दो, ठीक है? तो we can imagine, आप किसी चीज़ को imagine करो, आप कोई gaseous substance है या कोई भी substance है, उसको आपने compress कर दिया, तो क्या होगा? Volume कम हो जाएगा. उतनी ही particles अगर आप इसको compress कर देते हो तो ये particles जो हैं they'll come closer and ये इतनी सी चीज़ compress होके कम हो जाएगी. That means volume कम हो जाएगा, right? But अगर आप इसका internal pressure decrease कर देते हो, रिलीज कर दो सारे पार्टिकल्स को, ये पार्टिकल्स जो है एक्सर्ट कर रहे हैं ना प्रेशर, अगर ये प्रेशर रिलीज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, तो व्हाट विल हैपन? पार्टिकल्स और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, राइट? दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा. दैट इज़ जब प्रेशर डिक्रीज हो जाए, ठीक है? जस्ट इमेजिन द ऑपोजिट वन, दैट इज़ मोर ईजियर टू इमेजिन. अगर प्रेशर इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. अगर हमें वॉल्यूम को इंक्रीज करना है तो हमें प्रेशर को डिक्रीज करना होगा, रिड्यूस कर देना होगा, प्रेशर को रिलीज करना होगा, तो फिर और ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है? सो दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. नाउ द सेकेंड फैक्टर ऑन विच द वॉल्यूम डिपेंड्स इज टेम्परेचर. वी हैव सीन वन, नाउ विल सी द अनदर फैक्टर. अनदर फैक्टर इज टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो व्हाट वुड हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स? काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, मोशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और वॉल्यूम एक्सपैंड होगा ना. अगर वॉल्यूम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल्स और रैंडमली मूव करते हैं, और ज़्यादा ज़ोर से मूव करते हैं, और ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, तो वो एक्सपैंड हो जाएंगे, करेक्ट? तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो तो वॉल्यूम वुड increase. This point, this characteristic is very very important. ये पूरा study of gas laws is dependent on आपका ये पोर्शन कितना क्लियर हुआ है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट सीम्स कि बहुत सिंपल है, एंड है भी, नो डाउट, बट देन जस्ट द पिक्चर शुड बी क्लियर कि आप रटना नहीं है बेटा ऐसे. यू डोंट हैव टू मग अप, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पिक्चराइज द थिंग्स इन योर माइंड एंड सी कि प्रेशर के साथ वॉल्यूम का ये रिलेशन है एंड टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का ये रिलेशन है. इफ़ यू गेट टू अंडरस्टैंड दिस, later in the chapter you would find कि when we'll study the laws, okay, अभी हम behavioral properties पढ़ रहे हैं, laws पढ़ते टाइम इनको अगर आप समझ जाते हो तो chapter बहुत easy हो जाएगा. Fine. So this is the fifth property कि gases highly expansible हैं, they can be expanded. Again look at this picture. अगर आप इसकी जगह पे इतना ही बड़ा एक solid लेते हो, okay, we'll look at this picture. यहाँ पे these are the gas particles, fine. अगर आप इसकी जगह solid लेते हो of the same size, then solid particles कितने होंगे? इस तरह से होंगे ना, tightly packed, fine. अगर आप पर यूनिट एरिया देखो, सपोज मैं सिर्फ इतना देखती हूँ और इतना देखती हूँ, तो पर यूनिट एरिया अगर आप देखो तो you would find कि गैसेस में पर यूनिट एरिया अगर आप देखो तो पार्टिकल्स बहुत ही कम है. यू विल फाइंड वेरी लिटिल. और अगर आप कंपेयर करोगे, आप जिस वेसल में इट हैज़ बीन केप्ट, अगर आप उस वेसल के साथ साइज़ के साथ कंपेयर करो, अगर इतने ही बड़े वेसल में इफ़ आई वुड हैव अरेंज्ड द सॉलिड पार्टिकल्स, सो यू कैन इमेजिन कि कितने सारे पार्टिकल्स यू वुड हैव सीन हियर. बट सिंस ये गैस पार्टिकल्स हैं तो इस वेसल के साइज़ में पर यूनिट अगर आप देखो तो यू विल फाइंड वेरी वेरी लेस पार्टिकल्स. दैट मीन्स
कि डेंसिटी ऑफ द गैसेस इज वेरी लो. So this is the sixth point. They have a low density, very low density. Fine. So density of the gases is very low. This is another behavioral property or the characteristic of the gases. Coming to the seventh property. Now again look at this picture. Suppose ये एक गैस का स्ट्रक्चर मतलब पार्टिकल्स मैंने बनाया. ये सपोज दूसरी गैस है. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड वन. ओके. नाउ सिंस इसके पार्टिकल्स भी दे आर रैंडमली, इफ दे आर ओपन टू मूव, अगर इसके पार्टिकल्स भी रैंडमली मूव कर रहे हैं इसके भी, तो इनकी प्रॉपर्टी है ना, दे मिक्स विथ ईच अदर वेरी फाइनली. ओके. होमोजेनस मिक्सचर बना लेते हैं ये फटाफट से, बहुत अच्छी तरह से इनके पार्टिकल्स मतलब एक गैस के पार्टिकल्स दूसरे गैस के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं, जिन एक दूसरे में डिफ्यूज़ होकर होमोजेनस मिक्सचर बना लेते हैं. फाइन. So they have the next property is they have a very good property of mixing with each other. Okay, they mix with each other. कौन मिक्स हो रहे हैं? The particles. Okay, they mix with each other. और क्या बनता है मिक्स होके? एक homogeneous mixture. ये गैसेस की नेचुरल टेंडेंसी है. यू कैन सी द एटमॉस्फेयर अराउंड यू, राइट. ऐसा होता है. कितनी सारी गैसेस है ना एयर में, मिक्सचर ऑफ गैसेस है. तो कैन यू जस्ट सिंपली पिक आउट द सेपरेट आउट द पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन? नो, यू कैन नॉट डू सो. A beautiful homogeneous mixture is created naturally. It's a natural tendency to mix with each other, the particles of the gases. Okay. So घर पे कभी बड़ा कुछ मज़ेदार सा खाना बन रहा होता है, आप एक दूसरे कॉर्नर में भी होते हो घर के, तो यू आउट ऑफ द स्मेल है ना, आप सेंस करके बता देते हो कि आज कुछ मज़ेदार बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट. सो ये है प्रॉपर्टी गैसेस की. कमिंग टू द टॉपिक, सपोज आप रूम में आपने क्लोरीन गैस या अमोनिया गैस कुछ भी बॉटल में बंद है, अगर आप उसको खोलते हो तो सेकेंड्स में आप रूम के दूसरे कॉर्नर में भी अगर हो तो यू कैन स्मेल दैट, यू कैन सेंस. ओके. क्लोरीन गैस, दिस इज़ हेवियर. क्लोरीन गैस जो होती है ना वो हैवी होती है. अब ये हैवी होती है तो इसे नीचे सेटल हो जाना चाहिए, है ना, उसे डिफ्यूज़ होके पूरे रूम में ऊपर तक कॉर्नर्स तक तो नहीं जाना चाहिए बिकॉज इट इज़ हैवियर, तो इसे सेटल हो जाना चाहिए. बट नो, सिंस इट इज़ गैसियस इन नेचर, तो इसकी प्रॉपर्टी है व्हाट, टू कोलाइड. अब ये कोलाइड करेगी दूसरे एयर पार्टिकल जो और गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स से. सो इस तरह से यूनिफॉर्मली, दो इट इज़ हैवियर बट यूनिफॉर्मली हिट करके और डिफ्यूजन प्रॉपर्टी की वजह से वो सारे रूम में स्कैटर होता है एंड यू कैन फील द सेंस द स्मेल ऑफ इट. ओके. सो द सेवेंथ प्रॉपर्टी इज़ कि वो बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं नेचुरली. Okay, now eighth and the last property is gases can be liquefied. Okay, I'll write the eighth property here. Gases can be liquefied. Liquefied means liquid बनाया जा सकता है ना. लिक्विड को गैस तो बनाया जा सकता है, बट क्या गैस को भी लिक्विड बना सकते हैं? येस, बिल्कुल, बट अंडर सर्टन अगेन दीज टू कंडीशंस. अगर टेम्परेचर बहुत लो कर दिया जाए, कूल कर दिया जाए अगर गैस कर दें, एंड टॉप ऑफ दैट अगर हम अब प्रेशर को बढ़ा दें बिकॉज वी वांट टू कंप्रेस इट, राइट. कंप्रेस मीन्स इन पार्टिकल्स को क्लोजर लाएंगे तभी तो लिक्विड के फॉर्म में आएंगे. तो इसको लिक्विफाइड बनाने का मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग? वी हैव टू मेक दीज पार्टिकल्स कम अ लिटिल क्लोजर. उस स्टेट तक उनको लेके आना है कि अब वो स्टेट ऑफ मैटर जो है लिक्विड का स्टेट ऑफ मैटर बन जाए. फॉर दैट टेम्परेचर आप पहले रिड्यूस कर दो एंड उसको कंप्रेस करने के लिए प्रेशर को क्या करेंगे? हमें इसे कम करना है तो इसे बढ़ाना होगा, है ना. प्रेशर बहुत ज़्यादा देंगे कूल गैस में तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, कंप्रेस होगा और लिक्विड स्टेट तक भी आ सकता है. So these are some of the behavioral properties, some of the characteristics of the gases. So in the next class we'll see, in the next video we'll see कि gas laws क्या है, what are the laws which the gas follows. अगर ये pressure condition या temperature conditions similar रखा जाए या change किया जाए, vary किया जाए, तो क्या laws follow करती हैं ये gas और क्या change आता है इनके behavioral property में. So this is all for today. Hope to see you in my next video. For that you need to subscribe to the channel. Thank you. Take care. Bye bye.